Hello students, welcome to Fun with Biology and today we will learn Chapter 7 The Circulatory System of Class 10 Biology ICSE. And now we will start with need for transport inside the body. Before that, let me give a summary of this whole chapter. In this whole chapter we will learn how the blood from the body through vena cava enters into the right auricle and then through valve to the left ventricle and then through semilunar pulmonary vein semilunar pulmonary artery to lungs and from lungs through semilunar pulmonary vein to the left auricle and then through the valve to the left ventricle and then from the left ventricle through aorta to the whole of the body. And now we will start with body fluids. Need for transport inside the body. Why we need transport system inside our body? Why we need this all exchange, this all circulations, whatever that is going inside our body? Let's have a look. Every organ in our body requires the involvement of the circulating body fluids. For example, the digestive system digests and absorbs nutrients which are needed to be transported to every body cell. Why we need transportation system or transport system? What can we say? Why we need? There's an example. Let's see. As you might have known that in class 9, that whatever we eat, the simpler thing that the blood absorbs is the glucose, amino acids, fatty acids. So here we need to transport these all nutrients to the each and every cell of our body, from the small intestine to each and every cell of our body. How it will be? It, it is carried out by the blood. So here we need the transport system. Then the respiratory system draws in air and the oxygen picked up from it in the lungs has to be transported to all parts of the body. Similarly, the CO2 collected from the entire body has to be carried to the lungs for giving out. तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्यों ज़रूरत पड़ी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की. जो हम ब्रीथ इन करते हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो that oxygen need to be reached to each and every cell of the body, and carbon dioxide from that cell need to be expelled out. So how this will be possible? This will be possible through the transport system, and it is mainly through the blood. And then we will see where we need our transport system, or we can say blood in our body. All the extra water, excess salts and the nitrogenous waste such as urea have to be removed from different parts and have to be sent to the excretory system to be thrown out of the body. Here we need all the excretory products, mainly urea, whatever that is, urea and some vitamin C's or some extra medicines, bile also. Oh no, not bile a little amount, medicine, drugs what we take, and extra of water soluble vitamins we take, and some urea mainly the nitrogenous waste that need to be excreted out from our body through the excretory system, and it is mainly carried out by the blood to kidney. Here we need our transportation system. If there is no blood, if there is no transportation system, then how these excretory products from each and every cell of our body will be carried out to the kidney? And after that, all the thing like refining, first it will be refined from through the glomerulus, and after that the excretory system. And then we will see our next thing, hormones. You might have known what is the hormones. If you don't have known, then let me say you what is hormones. Hormones क्या होता है? These all are called chemical secretions. Like
that control and coordinates the organ that is not that is far behind the organ that secretes the hormones. इसका मतलब ये है, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ. लाइक यू माइट हैव heard about our pituitary gland. What is that? This is called the master gland. You need to remember, you will learn this chapter. Pituitary gland, it is the why it is called a master gland, because it controls all other glands. It is in the brain below the hypothalamus. Pituitary gland secretes hormone that controls other glands that is far from it. How these hormones, मतलब वो हार्मोन कैसे आते हैं उसके पास, कैसे आते हैं? Through blood, or we can say through our transport system, through blood. Okay, then we will move to the next. All these functions that need transports are performed by two circulating fluids, the blood and the lymph. Besides transport, these fluids have some other functions also. lymph क्या है वो आप देखोगे, मतलब आगे जाके आप देखोगे वो एक फ्लूइड है. बहुत सारे फ्लूइड होते हैं हमारे बॉडी में, आप देखोगे ये सब. देखो, ये देखो सब फ्लूइड्स इन आवर बॉडी. क्या क्या फ्लूइड हैं हमारे बॉडी में? There are three principal fluids in our body: blood, tissue fluid, lymph. एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये सारे ही सेम होते हैं, मतलब देख लो आप कैसे सेम होते हैं. ब्लड कंटेंट इन द हार्ट एंड इन द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये सब हमारे ब्लड वेसल्स से, याद रखो. वो कहाँ पे होता है? ब्लड हमारे हार्ट में होते हैं, आर्टरीज और वेन्स एंड कैपिलरीज में होते हैं. फिर टिश्यू फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड ऑक्यूपाइंग स्पेसेस बिटवीन सेल्स इन द ऑर्गन्स. ये टिश्यू फ्लूइड क्या है? टिश्यू फ्लूइड एक्चुअल में क्या है? जब हमारा एक्सचेंज होता है, मतलब यहाँ पे आप देखो, एक मिनट, ओ सॉरी, क्या हो रहा है? हाँ, बस हो गया. देखो आप यहाँ पे, आप देखो, ओह शिट, देखो आप लोग यहाँ पे वो जो आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा है ब्लड टिश्यू फ्लूइड. क्या है? ब्लड नहीं आता. हमारे जो प्लाज्मा होता है, मतलब वाइटिस वाला जो पार्ट होता है, प्लाज्मा में कुछ आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स. इसी को ही हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं. टिश्यू फ्लूइड क्यों? हमारे जो टिश्यू होता है, जैसे आप लोग देख लो, ये एक टिश्यू है, ये एक न्यूक्लियस है उसका, मतलब प्रॉपरली नहीं आ रहा है. ये एक टिश्यू है, फिर ये एक आ गया. यहाँ पे जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड आ गया, यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड आ गया, यहाँ पे ये देखो, ये सब, हाँ, ये सब जो है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज़ हो गए. ये जो है, ये है टिश्यू फ्लूइड. यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज फाइन होते हैं, लेकिन वो हर टिश्यू में नहीं पहुंच सकते, तो इसीलिए टिश्यू फ्लूइड होते हैं, ताकि जो कैपिलरीज, मतलब जो काम नहीं कर सकते, जो एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो वो टिश्यू फ्लूइड करता है. मतलब यहाँ से ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आता है, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है, और जो भी होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, हार्मोन्स यहाँ से जाते हैं, बहुत सी चीज़ होती हैं यहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाते हैं टिश्यू फ्लूइड से. चलो, हाँ, हो गया. तो फिर यहाँ पे आता है लिम्फ, विच इज़ कंटेन्ड विद इन लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन सच एज द स्प्लीन एंड द टॉन्सिल्स. ये जो है स्प्लीन एंड टॉन्सिल्स, ये लिम्फेटिक ऑर्गन है. अब देखोगे आगे जाके, मतलब पता ही होगा शायद. ये लिम्फ क्या है? वही टिश्यू फ्लूइड यहाँ पे आ गया, लिम्फ नोड में हो गया लिम्फ. चलो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है. ये जो डायग्राम के बारे में लिखा है कि ये डायग्राम में हो क्या रहा है. हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम है. क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम क्या है? मतलब हमारे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स हैं. हमारे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, वो थ्रू एक वेसल्स, क्लोज्ड पाइप बोल सकते हो, वहाँ क्लोज्ड पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, इसीलिए वो है क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम.
As against this, in certain animals such as insect, the blood mostly flows through open spaces called an open. हाँ, ये देखो जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है बहुत से इंसेक्ट्स में होते हैं ओपन, आप बता सकते हो कॉकरोच वगैरह में वो ओपन सिस्टम होते हैं, मतलब वहाँ पे उनका वेसल्स नहीं होता, क्लोज्ड पाइप के अंदर ब्लड फ्लो नहीं करते। फिर हम आते हैं नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। ये जो हमारे तीन थे सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, याद रखिए आप, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। फिर हम आएंगे नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स में। क्या क्या है आप लोग देख लो, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब आता नहीं है, लेकिन ये जो विट्रस ह्यूमर हो गया वो आप पढ़ोगे, आई में पढ़ोगे। फिर साइनेबल फ्लूइड तो आप लोग पढ़ ही चुके होगे, स्टैंडर्ड 7 में स्केलेटल सिस्टम में ही तो होता है ये। क्या है ये? देर आर ऑल्सो सम अदर फ्लूइड्स लोकेटेड इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स सच एज साइनेबल फ्लूइड इन द कैविटीज ऑफ स्केलेटल जॉइंट्स, विट्रस ह्यूमर इन द आई, दे डू नॉट सर्कुलेट। ये क्या है? फ्लूइड है जो सर्कुलेट नहीं करते। जैसे आप साइनेबल फ्लूइड देख लो, नी में होता है, नी में आपको पता ही होगा, मतलब ऐसे होता है एक पाउच जैसा ऐसे होता है, इसमें थोड़े से फ्लूइड है, आप लोग को पता ही होगा। जो हमारे ओल्ड हो जाते हैं, जो ओल्ड एज के होते हैं, तो उनमें दर्द होने लगता है नी में। क्यों होता है? ये जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा मतलब ख़त्म हो जाता है, तो फ्रिक्शन के वजह से थोड़ा दर्द होने लगता है। फिर विट्रस ह्यूमर वो आई में है, आप लोग पढ़ोगे उसको। तो फिर लेट्स स्टार्ट विथ आवर आई, सॉरी द ब्लड, आई एम सॉरी, द ब्लड। एंड नाउ वी विल कम टू आवर टॉपिक ब्लड। ब्लड, उसके प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं, पहले देख लेते हैं। नेवर स्टेशनरी, ये तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, तो स्टेशनरी कैसे होगा? हमेशा ही सर्कुलेट करता ही रहेगा, मतलब हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से हार्ट, फिर हार्ट से बॉडी, फिर बॉडी से हार्ट, ये उसका साइकिल चलता ही रहता है। कॉलर क्या है? द ब्लड इज ए समहॉट थिक फ्लूइड। आपको मतलब कभी कट हुआ होगा तो आप लोग देखे होगा पानी की तरह फ्लो नहीं करता, वो एक ही जगह में पड़ा रहता है। क्यों रहता है? वो थोड़ा थिक है, उसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है। उसका कलर क्या है? ब्राइट रेड, यू नो दैट, ब्राइट रेड। और फिर वो जब वेन में आ जाता है थोड़ा डार्क हो जाता है, क्योंकि मतलब ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वो थोड़ा हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है व्हेन टेकन फ्रॉम आर्टरी और डार्क रेड व्हेन टेकन फ्रॉम ए वेन। कन्वेंशनली इन द डायग्राम वी सो द वेन्स ब्लू, क्यों मतलब ऐसे दिखा देते हैं ब्लू, और आर्टरी में रेड। तो फिर वॉल्यूम आ जाते हैं। एवरेज अडल्ट ह्यूमन कंटेन्स 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड बाय वॉल्यूम इन दिस बॉडी। तो एवरेज में हम लोग का कितना होता है? 5 to 6 लीटर। टेस्ट कितना होता है? सॉल्टीस होता है। क्यों होता है? थोड़ा पीएच मतलब होता है, बेसिक अल्कलाइन पीएच होता है। सो इसका पीएच आप याद रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है 7.3 to 7.45। तो फिर हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फ्लूइड। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना पढ़ने के बाद हम क्लास बंद करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, हार्मोन्स, बॉडी हीट, जो हम वहाँ पे पढ़ के आए थे उसको थोड़ा डिटेल्ड में देखेंगे। और हाँ, ये जो चीज़ है ये इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई कैन से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको देखना है। मतलब आता है एग्ज़ाम में, बहुत बार आया था, हमारे तो हुआ ही नहीं था, लेकिन आया था, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको याद रखो, इम्पॉर्टेंट। ये और ये मैं लिख दी तो रेड में, इम्पॉर्टेंट जी, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। So then transport of digested food from the alimentary canal to the tissues. These substances are very simple sugars like glucose, amino acids, vitamins, mineral salts. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इट ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, जो हमारा सिंपल फूड हो गया, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स टू ईच एंड एवरी टिश्यू। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन बता रही हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द लंग्स, क्वेश्चन क्या आता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो आप लिखोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के भी वही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, वो क्या है, तो ये है कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो, आ सकता है एग्जाम में।
Transport of oxygen from the lungs to the tissues, it occurs by means of red blood cells in combination with hemoglobin in the form of an unstable compound. ये भी unstable है और ये भी unstable है. ये आता है unstable compound क्या form करता है? Oxyhemoglobin which on reacting the tissue break off to deliver oxygen. ये आता है, ये लाइन जो लिखा है लास्ट में ये आता है, नॉर्मली ये आ जाता है, तो आपको लिखना है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. फिर आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स. इट ऑकर्स पार्टली इन कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन एंड पार्टली सॉल्यूशन इन द ब्लड प्लाज्मा. ये प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके जब हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे. तो फिर आप देख लो क्या होता है. ये तो हो गया लंग्स से बॉडी, ये क्या हो गया बॉडी से लंग्स. तो ये क्या है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन. आपको सिंबल भी आ सकता है कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कैसे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखना, मतलब याद ही रखना, डॉट देना, इसे मत लिख देना. फिर आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल. हम तो बता रखे हैं, मतलब स्किन फ्रॉम द टिश्यूज टू द लीवर किडनी और द स्किन फॉर एलिमिनेशन और टू रेंडर देम हार्मलेस. ये लिवर में जाता है, फिर किडनी तो आपको पता ही है, और स्किन में क्या होता है हम जो स्वेट करते हैं उसके थ्रू भी बहुत बहुत कम ही यूरिया निकलता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, द ब्लड हेल्प्स इन कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यूनिफॉर्म बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट. हमारे पूरे बॉडी को गर्म रखने के लिए ब्लड का बहुत है काम है. उसके बाद हम यहीं पे क्लास एंड करते हैं. So thank you बच्चों. Let's be in touch with me and from next lecture we will learn the protection by blood. तो मेरे साथ टच में रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए. थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.